پورا قذافی ٹاؤن، عسکری ٹاؤن اور ظفر ٹاؤن گیا ہوں، تو وہاں پہ کوئی سرکاری اسکول نہیں. اسی کا نائب ناظم رہا. میرے وقت میں جتنے کام ہوئے اس کے بعد 3 ٹرم گزرے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کوئی کام نہیں کرا. خواجہ محمد عوان صاحب کے صاحبزادے تھے حسن عوان، یو سی کا الیکشن لڑا. سرکاری اسپتال ہیں، نہ سرکاری کالج ہیں، نہ سرکاری پارکس ہیں، نہ کوئی تعلیم کا نظام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اعجاز خان 1 TV یوٹیوب چینل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. دوستو، آج ہم گلستان سوسائٹی میں محمد افضل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ UC 5 سے کھڑے ہیں چیئرمین کے لیے. میں نے پہلے بھی اپنے اس چینل پر الگ الگ لوگوں کے موقف لیے، عوام کے موقف لیے، اور میں ان سے بھی ان کا موقف جانوں گا. آیا اللہ پاک اگر ان کو یہ عہدہ دیتا ہے اور اللہ پاک ان کو لاتا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک لائے ان کو، یہ تحریک انصاف سے کھڑے. اگر یہ گلستان سوسائٹی کے بڑھتے سیٹ ان کو اللہ پاک چیئرمینی کی دیتے، آیا یہ کیسی تبدیلی کریں گے؟ جو آتے ہیں اکثر وعدے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے وعدے دعوے ادھورے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ پاک ان کو یہ عہدہ دیتا ہے، یہ کیا نیا کمال کریں گے، یا یہ کیا ایسا نیا وہ کریں گے کہ ہر بندہ انہی کو ووٹ کرے اور انہی کو سپورٹ کرے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعجاز بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہیں جو ابھی ڈیلے ہو گئے ہیں، 28 اگست کی ڈیٹ آ رہی ہے. تو میں جس مشن سے اس میدان میں اترا ہوں، میرا مشن، کیونکہ میری وابستگی تعلیمی میدان میں، اور ہماری فیملی 1987 سے اس UC میں خصوصاً ہم لوگ اسکولز کی فیلڈ میں، اور ہزاروں کے تعداد سے طالب علم ہمارے پاس سے میٹرک پاس کر کے چلے جا چکے ہیں. اور ابھی بھی میرا ادارہ الائیڈ اسکول کے نام سے یہاں پہ میں خود اس کو بذات خود رن کر رہا ہوں، جو 3 کیمپس ہیں، ایک شاہ لطیف میں. تو میرا مشن یہ ہے کہ میں جیسے کیمپین کے دوران پورا قذافی ٹاؤن، عسکری ٹاؤن اور ظفر ٹاؤن گیا ہوں، تو وہاں پہ کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، اور ہمارا تمام جو مزدور طبقہ ہے وہ رہتا ہے وہاں پہ. تو میرا جو مشن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے یہ عزت دی، تو سب سے پہلے میرے جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ بلڈنگ وہ پرووائڈ کریں گے، اور اسکول کی جو جتنا بھی تعلیمی اس کا نظام ہے، اس کے فرنیچر ہے، وہ سارا کچھ میں پرووائڈ کروں گا. اچھا شکریہ. اچھا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. افضل صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اس میں سے مجھے وہی کچھ یاد آ گیا. میں انہی کے اسکول میں پڑھا ہوں، ہیرا پبلک اسکول کے نام سے یہاں پہ ہوتا تھا، اور میں یہیں سے پڑھ چکا ہوں. انہی کا اسکول تھا وہ ماشاءاللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر علاقہ وائز اگر آپ پتہ کریں تو بہت اچھے خود بھی ہیں، اور ان کے جو پوری فیملی ہے، ان کے جو بڑے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. یہ جو آج میں جس پہ بات کر رہا ہوں، یہ سر میں بلدیاتی الیکشن ہے. سر مجھے یہ بتائیں، یہ جو اس وقت حکومت جو ہونا، یہ 24 کو تھا اور 28 پہ ہو گیا، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر جیسے پریڈکشن تھی، بارش ہوئی ہے، لیٹ ہوا ہے، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ 2-4 دن لیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے بھی امیدوار ہیں، میں اکیلا نہیں، جتنے بھی پینلز پورے کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹا سے کھڑے تھے، ان کے خطیر رقم لگ گئی ہے اس کیمپین میں. آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی ہے، تو اس کو جلد از جلد، ابھی 1 مہینے کا ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیمپین پہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے خرچہ کیا تو وہ دوبارہ ہونا ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا جلدی کیا جائے. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. مجھے آج بھی یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی بار باہر سے پاکستان کراچی آ رہی تھی، 14 کروڑ روپے کے سائن بورڈ لگے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. تو واقعی یہ جو خرچہ ہو جاتا ہے، پھر یہ جو ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ یہ اپنی مدد، آپ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے سر، یہ آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں یا پارٹی کرتی ہے؟ سر نہیں، پارٹی نہیں کرتی، یہ کینڈیڈیٹ خود کرتے ہیں. دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے، اگر لاکھوں روپے یہ ضائع کرتے تو یہ ضائع ہو جاتے ہیں. حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ آیا ایسی چیزوں پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کوپریٹ کریں. ان کے ساتھ باقی بھی ساتھی موجود ہیں، میں انشاءاللہ ان کا بھی موقف لوں گا. وہ آیا ہمارے افضل صاحب کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں اور ووٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमारे साथ सीनियर रहनुमा मलीर कामरान अब्बासी साहब मौजूद हैं। वो आया अफजल साहब को वोट क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं किसी को वोट करता हूँ या मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ उसकी कोई वजह होती है। मैं इनसे भी इनका मौक़िफ़ जानूँगा कि आया ये इनको वोट क्यों कर रहे हैं या सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हमारा मौक़िफ़ लेने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हर किसी को सपोर्ट करने की या वोट करने की कोई वजह होती है। आप अफजल साहब को वोट क्यों कर रहे हैं और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। असल में एजाज़ भाई बात ऐसी है कि पिछले बल्दियात में माशाल्लाह से हमारे ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब के साहबजादे थे हसन अवान, यूसी का इलेक्शन लड़ा उन्होंने और उनके साथ दीगर खालिक मरवत साहब, अल्लाह ने उनको चांस दिया, वो डीएमसी मलीर में गए। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी लोगों को मायूस किया। तो इस वजह से अफजल भाई जो हैं, हमें ये बेहतर कैंडिडेट नज़र आए कि हमारी यूसी में, हमारे वार्ड में जो हमारे लोकल बॉडी के हिसाब से काम है, सेवरेज के ग्राउंड का, हमारे पास पूरे मलीर में एक ही ग्राउंड है, उसका यकीनन हमारे साथ वादा था हसन नासिर अवान का भी, वो ग्राउंड भी ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है और बाकी ना गलियों में ना मोहल्लों में कोई काम नहीं हुआ है, ना हमारे वाइस चेयरमैन ने ना चेयरमैन ने कोई काम किया हो। तो इस वजह से हमने कहा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट मोहम्मद अफजल ज़ेब हमें बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि इनका सियासी हवाले से इनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली से भी पूरे हैं, स्कूल के ओनर भी हैं, स्कूल की एजुकेशन भी है, उस हवाले से हमें ये कैंडिडेट बेहतर लगा। तो हमारी कोशिश बजाते ख़ुद यही है कि सर दर की बाजी लगाकर इस कैंडिडेट को जताएं और गुलिस्तान सोसाइटी का नक्शा उलिया हम चेंज करें। शुक्रिया कामरान साहब वक्त देने के लिए, और अफजल साहब शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी भी मौजूद है, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये अफजल साहब को क्यों वोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। एजाज़ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बस एजाज़ भाई हमारे पुराने साथी हैं तो हम मुतमईन हैं, मेरे साथ इन्होंने बचपन गुजारा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है और हमारी पूरी दिलो जान कोशिश है कि हम अफजल भाई को सपोर्ट करें और अच्छे से अच्छे मकाम पे पहुंचाएं। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में, जो अल्लाह चाहे वही होता है। बाकी हमारी दूसरी पार्टियां भी हैं, बाकी लोग भी हैं, हमारा मोहल्ला हमारा घर है। ये नहीं है कि हम इनके साथ हैं तो दूसरों को नाराज़ करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनसे ही मुतमईन हैं, उनसे भी, मगर एक पार्टी का लगाव होता है इंसान को, तो इस वजह से हम वहाँ हैं। बाकी हमारी यही कोशिश है, हम अफजल भाई से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पूरे यूसी में न सरकारी अस्पताल हैं, न सरकारी कॉलेज हैं, न सरकारी पार्क्स हैं, न कोई तालीम का निज़ाम है, सीवरेज लाइन, रोड बनना, ये सब अब हमारी सोच रह गई है। हम नहीं चाहते कि जैसा हमारा मुस्तकबिल गुज़रा है ऐसे हमारे आने वाली नस्लों का ही मुस्तकबिल गुज़रे। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अफजल भाई को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह एक मकाम तक पहुँचाएँ। शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। मैं बड़ी अच्छी बात है कही भाई ने कि आया, ज़ाहिर सी बात है हम इस वक्त इस मामले में फंसे हुए हैं कि एक तो जहाँ पूछो सेवरेज का मसला, इनसे नहीं निकल रहे, बिजली का मसला आया। अफजल साहब ने इनसे, बाकी लोगों से हमने करवाना क्या था कि हमने करवाना इनसे बड़े बड़े काम थे। हमारे साथ एक और साथी भी आ गए मौजूद है, हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ साबका नाज़िम यूसी 5 के हाजी मस्तान साहब मौजूद हैं और इन्होंने भी माशाल्लाह इस इलाके के लिए कुछ किया होगा, तो आज यहाँ बैठे हुए हैं अफजल साहब के बगल में। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आया ये अफजल साहब को वोट क्यों कर रहे हैं और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है, आया अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अफजल साहब को अल्लाह पाक लाए, आप इनको वोट करने की और सपोर्ट करने की आपकी वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं। मुझे इस पे 100% जो है ना भरोसा है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे साथ आबादी में छोटा बच्चा बड़ा हुआ है और मैं इसको ख़ानदानी तौर पर बचपने से जानता हूँ कि ये एक मेहनतकश और ईमानदार और साफ गो आदमी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 2001 से 2006 तक मैं इस यूसी का नायब नाज़िम रहा
मेरे वक्त में जितने काम हुए हैं उसके बाद 3 टर्म गुजरे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कोई काम नहीं कराए। और मैं इनके साथ इस वक्त इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे इन पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जीतेंगे भी और ये काम भी कराएंगे और लोगों के बगैर बोले काम कराएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे इस पे इतना भरोसा है। इसके ऊपर भी, वाइस चेयरमैन के ऊपर भी, अफजल ज़ेब के ऊपर भी, और जो वाइस चेयरमैन है सईदुल्लाह खान, दोनों के ऊपर मुकम्मल एतमाद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम करेंगे। शुक्रिया हाजी साहब वक्त देने के लिए। हाजी साहब भी इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारे हाथ का है और आया ये मेहनती लड़का है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, उलमा को ज़्यादा पता होता है। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा अपनी रियाया से कहा था कि आया अगर मैं तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे मयार के मुताबिक ना हूँ तो तुम क्या करोगे? तो एक सहाबी ने तलवार निकाल कर कहा आपका फ़ैसला मेरी तलवार करेगी। मैं अफजल साहब से भी कहूँगा, अफजल साहब मैंने ये बात जिसके पास भी गया हूँ, जो भी चेयरमैन के लिए अलग अलग इलाकों से खड़े हैं उनसे मैंने कहा है, और मैं अफजल साहब से भी कहूँगा, इनके साथ जो खड़े हैं उनको भी कहूँगा, हाजी साहब से भी कहूँगा, अल्लाह पाक मेरी दुआ है, अल्लाह गवाह है, मैं इस चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, अल्लाह पाक इनको लाए। मगर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है अफजल साहब के, आपके इलाके में रहने वाले अगर कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई XYZ JUI को, किसी को भी सपोर्ट करता है, वो आपके लिए अल्लाह पाक अगर आपको ये ओहदा देता है तो आपके लिए बच्चों के मायने न हो जाते हैं। वो आपके अगर आपके पास वो आते हैं कि मेरे गली का काम नहीं हुआ, मेरे इलाके का, तो आप सबसे पहले उसका काम करें। अपने वर्कर को फिर भी समझा सकता है हाजी साहब मैं सही कह रहा हूँ, तो उनको आप जितना सपोर्ट करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ आपको हराने वाला कभी भी नहीं मिलेगा। आप ज़िंदगी भर आप नहीं हार सकते, ये मेरा ईमान है। क्यों? क्योंकि आप जो आप पर तनकीद करता हो आप उससे भी मोहब्बत की निगाह से देखोगे तो अल्लाह पाक आपको ज़ाहिर सी बात है आपके लिए फ़ैसले ऊपर से करेगा। और मैं मशकूर हूँ अफजल साहब आपका, कामरान साहब आपका, भाई का और हाजी साहब का। मैं बस इतना ही कहूँगा, हमारे चैनल के थ्रू अल्लाह पाक इनको लाए।